to transform not only the study of language but also the way we think about the power. His name is Avraham Noam Chomsky. His date of birth is 9th December 1928. He is belong to the Philadelphia city, Pennsylvania state, United States of America. You know, in the recent times, there is some rumors are spreading that he is dead, but not. He is now alive. Now he is staying in the Brazil country. Father name is William Chomsky and mother name is Elsie Chomsky. His family give encourage to Noam Chomsky for the independent thinking. His mother is social worker. That's why the Noam Chomsky's family is the good professions. That's why that's impact we can see on the Noam Chomsky. Now we will talk about the Noam Chomsky. Noam Chomsky is the American linguistics, philosopher, social critic, all these things. You know, he wrote the 100 of books that is on a war, mass media, philosophy, political science and linguistics. We can call him the modern linguistics also. So in this video we will talk about his main three concepts. You know, first one is the language or linguistics, second one is the politics and third one is the philosophy. नॉम चॉम्स्की ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में एडमिशन लिया। वहां पे ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ाया जाता था, तो इस वजह से उनको वो चीज बोर लगने लगी थी। तो उन्होंने मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर नाम का कंसेप्ट लाया। उसमें जैसे एस स्ट्रक्चर और डी स्ट्रक्चर यानी सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर होता है। तो ये सरफेस स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो हम बोलते हैं एक्चुअल में, यानी कॉन्फिडेंस ऑफ परफॉर्मेंस की तरह है, जो हम बोल सकते हैं जो एक्चुअल हमें दिखता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस स्ट्रक्चर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डीप स्ट्रक्चर, सो दैट टाइम द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, लाइक grammars in every language have the same grammar, but when it comes to the express time, so it is the change by person to person. So it is the basic rules of the internal minds concepts. Now अभी हम नॉम चॉम्स्की ही हमें बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के बारे में। First of all, it's worth mentioning that most overwhelmingly people learn language without training. I mean, if you simply immerse a child in a situation in which language is spoken, he acquires the system. But it's more than a response to the stimuli of the person around him speaking. Well, the most obvious and sort of gross fact about language, which shows that, I think, is the innovative, creative character of it. I mean, every child is capable of understanding and producing very complex structures which have no simple relationship, no point-by-point relationship, no relationship on the basis of analogy, let's say, to the experience that he's presented. Generative, creative structures of language. Just that you can, as we're talking, we say new things, which we may not have said before. We hear new things. I mean, language is, well, as we talk, there's very little repetition in what we say. Well, if you really were to see how little repetition there is, you can, let's say, take a book or a newspaper or a library, for that matter, and search for repetitions of phrases or sentences and so on. They occur, but rarely. तो नॉम चॉम्स्की ने भाषा विज्ञान में टोटल 19 वर्क्स किए हैं, और ये 19 वर्क्स नेट की एग्जाम में डेफिनेटली पूछते हैं, तो आपको याद होने चाहिए जितने भी लिंग्विस्टिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो उनका जो स्टार्टिंग ईयर है वो 1957 है और एंड वाला ईयर है 1995। तो जब हम 1957 की बात करते हैं तो वहां पे पहला वर्क है उनका जो एसएस से स्टार्ट होता है। ये ट्रिक्स है, ये याद रखनी है। एसएस मतलब सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। और लास्ट वाला जो वर्क्स है 1995 का वो है मिनिमलिस्ट प्रोग्राम, यानी एमपी मध्य प्रदेश करके आप याद रख सकते हो उसको। तो अब ये जो 1957 से 1995 तक 38 इयर्स होते हैं टोटल,
और 38 इयर्स उन्होंने काम किया है और उसमें 19 वर्क्स हैं। तो हम एक एक करके अभी देख रहे हैं उसको। दूसरा है 1959 में चॉम्स्की's रिव्यू ऑफ वर्बल बिहेवियर। थर्ड है 1964 का करंट इश्यूज इन लिंग्विस्टिक्स थ्योरी। हम ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चल रहे हैं अभी। ये 1965 का एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, ये बार बार पूछा गया है, ये तो आपको पक्का याद रखना है। उसके बाद मैं कुछ अब शॉर्ट्स वाली ही बुक्स का नाम बताऊंगा, बाकी मैं लिस्ट इस इमेजेस में आप देख ही रहे होंगे ऑलरेडी। उसके बाद है द साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश विथ हैले 1968 में। फोनेटिक्स का जितना भी पार्ट्स है वो इसी किताब में से लिया गया है। उसके बाद है 1968 में लैंग्वेज एंड माइंड। उसके बाद 1972 में टॉपिक्स इन द थ्योरी ऑफ जनरेटिव ग्रामर। नेक्स्ट है 1975 का द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी। उसके बाद 1982 में नॉम चॉम्स्की ऑन द जनरेटिव एंटरप्राइजेस। उसके बाद 1986 में नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। आफ्टर दैट 1993 लैंग्वेज एंड थॉट। 1995 मिनिमलिस्ट प्रोग्राम। So in this way, his whole works are completed here. But you have to remember. Then I want to tell you about the LAD, language acquisition device. That's a very important concept. You know, in this concept, the Noam Chomsky told us that every born child have the inbuilt capacity of learn languages. It is the called LAD, language acquisition device. The Noam Chomsky is very important concept on philosophical perspective. In this concept, we will understand here that कि जो भी रूलर होते हैं या भी जो भी जूडिज्म वाले होते हैं, तो नॉम चॉम्स्की का रिलीजन यहाँ जूडिज्म था। तो जूडिज्म में क्या होता था कि जो एज इट इज पहले ही बताया गया, हमें एज इट इज उस पर विश्वास रखना है, उस पर सवाल नहीं उठाना है। तो नॉम चॉम्स्की का ये कहना था कि अगर कोई भी बता रहा है तो उस पर एज इट इज विश्वास मत रखो, आप उस पर सवाल उठाओ और सवाल उठा के अपने अंडरस्टैंडिंग और रैशनल थिंकिंग से उसको समझो, और यही मेथड होता है हमारे इनलाइटनमेंट प्राप्त होने का। तो यही उनका कंसेप्ट था कि हमें हर चीज पे सवाल उठाना है, हमें इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट जाना है, हमें रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा देना। नॉम चॉम्स्की का वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। पॉलिटिकल में वो रैशनलिस्ट थे, वो हर चीज के बारे में यूएसए गवर्नमेंट जो है उनको भी सवाल पूछती थी। तो इस कंसेप्ट में उनका ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट लोगों के खिलाफ जा रही है तो लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उसके खिलाफ मार्च उठाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट भी अवेयर रहे इन चीजों से, वो लोगों से डरे और वो डेवलपमेंट पे ध्यान दे। सेम चीज हम देख सकते हैं इंडिया में भी वही प्रॉब्लम है कि लोग ज्यादातर इस गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, इंपेरियलिज्म करती है, शाही की तरह भी हम बोल सकते हैं। तो यही चीज नॉम चॉम्स्की अपने यूएसए गवर्नमेंट से भी करती थी। इस वजह से जितनी भी गवर्नमेंट्स होती है वो उनके खिलाफ रहती थी, लेकिन जो लोग होते हैं ना वो उनको बहुत पसंद करते थे। तो ये चीज हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व करनी चाहिए। नॉम चॉम्स्की इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट है वो अगर इंटरफेयर ज्यादा करिए लोगों में तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये वो बोलते हैं कि अगर जैसे गांव का एग्जांपल लेंगे तो गांव में वो डिसीजन खुद का खुद ही ले सकते, उसमें कोई गवर्न करने वाला या उनको कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही वो कंसेप्ट को बताते हैं। तो इसमें वो उस कंसेप्ट के द्वारा पूरी गवर्नमेंट को इमेजिनेशन के लेवल पे बताते हैं। सो आई वांट टू टेल यू हियर ही वाज द प्रोफेसर ऑफ Massachusetts Institute of Technology. It means MIT. So he was not the professor, but he is the reminder itself to thinking on self or itself.